Hi everyone, myself Divya Tamarkar, and today I am start a new chapter number 13, A Shelter So High. In this chapter, a traveler, his name is Gaurav Jani, he shared his experience of traveling by Mumbai to Leh Ladakh or Srinagar. She experienced many different things in that particular state, and he shared here with us. So let's start. A traveler tale. I am Gaurav Jani and this is Loner, my partner, my motorcycle. But Loner is never lonely, we are together all the time. So who is Loner? Loner is Gaurav Jani's motorcycle. He gave a name to his motorcycle which is Loner. They are all time together. वो हमेशा साथ रहते हैं. I and my motorcycle wait for a chance to get away from the busy, crowded and noisy city of Mumbai. We like travel to different part of this wonderful country. Let me tell you about our amazing journey on the highest road in India. So student, this is the highest road of India to journey by the Mumbai to Leh Ladakh. सो गौरव जानी और लोनर हमेशा एक चांस में रहते हैं कि उनको थोड़ा सा टाइम मिले और वो कंट्री एक्सप्लोर करने निकले. Because Mumbai is a so busy state, busy city, crowded city. So Gaurav Jani and Loner just take a chance, just want a chance and wait for it to get away from this busy, crowded, noisy city. So उन्होंने मुंबई से लेह लद्दाख की जो ट्रिप थी वो करने के लिए डिसाइड किए और उनका जो पूरा एक्सपीरियंस है वो हम यहाँ शेयर कर रहे हैं. This journey took about 2 months. I had to carry everything on my motorcycle. I had to plan and collect all the things I needed. I packed a small tent, sleeping bag, plastic sheet, warm clothes and food that would remain fresh for some days. I also took my camera and extra cans for petrol. Loner and I left Mumbai, passing through small village and towns of Maharashtra, Gujarat and Rajasthan to reach Delhi. ये पूरी जर्नी करने में उनको 2 मंथ का टाइम लगा था और उन्होंने अब जितनी भी रिक्वायरमेंट नीडी थिंग्स थी जो उनको एक जर्नी में लगेगी वो सारी उन्होंने मोटरसाइकिल में पैक कर ली थी. लाइक स्मॉल टेंट, प्लास्टिक शीट, स्लीपिंग बैग, वार्म क्लॉथ एंड फूड. विच टाइप ऑफ फूड? विच इज़ fresh for some days, like dry snacks which is refreshed for the 15 to 14 days. एंड लोनर और गौरव जानी ने मुंबई से अपनी जर्नी स्टार्ट की. छोटे छोटे विलेज और टाउन क्रॉस करके वो महाराष्ट्र से निकलकर गुजरात, राजस्थान पहुँचे और देन दिल्ली. It took me 3 days to cover 1400 kilometers from Mumbai to Delhi. I was hoping to see something new and different in Delhi. But Delhi looked just like Mumbai. I am tired of looking at the same kind of houses made of cement, bricks, glass and steel. I was looking forward to my journey ahead. मुंबई से दिल्ली का जो किलोमीटर था, डिस्टेंस था, वो 1400 किलोमीटर था जिसको गौरव जानी ने 3 डेज़ में कवर कर लिया. अब गौरव जानी को ये लगा था कि मे बी दिल्ली थोड़ा सा डिफरेंट होगा एज कंपैरिजन टू मुंबई, बट वो सेम था. ही फाउंड द सेम काइंड ऑफ हाउसेज विच इज़ मेड बाय द सीमेंट, ब्रिक्स, ग्लास एंड स्टील. फिर उन्होंने अपनी जर्नी आगे की. I was excited that I would be able to see wooden houses with sloping roof and those covered in snow. I had seen pictures of sun houses in many books. I packed more things in Delhi and continued.
In 2 days, we were in Manali. It was refreshing to be in mountains and breathe in the clean air. Now a real journey was began. We had to travel through difficult roads of the state of Jammu and Kashmir to reach Leh in Ladakh. सो जब वो दिल्ली से निकले तो क्योंकि 1400 किलोमीटर्स की जर्नी उन्होंने कंप्लीट कर ली थी और 3 डेज़ हो गए थे. सो बहुत सारी चीज़ें थी जो फूड आइटम्स थे और कुछ कुछ चीज़ें थी जो वो उनकी वहाँ पे ख़त्म हो गई थी. तो दिल्ली आकर उन्होंने उनको फिर से पैक किया और आफ्टर 2 डेज़ वो मनाली पहुँच गए. अब क्योंकि वो दिल्ली में बहुत सारे घर एज इट इज़ जैसे मुंबई में थे वो उन्होंने देखा था. सो वो बहुत एक्साइटेड थे वुडन हाउस देखने के लिए जो कि स्लोपिंग रूफ होते हैं, स्नो से कवर्ड होते हैं. सो व्हाट डिड यू मीन बाय द स्लोपिंग रूफ? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस स्लोपिंग रूफ? यू हैव टू गिव द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. तो वो स्लोपिंग रूफ वाले कवर्ड स्नो वाले जो हाउसेस थे उन्होंने सिर्फ बुक्स में देखे थे. सो वो बहुत एक्साइटेड थे उनको लाइव देखने के लिए. अब यहाँ से मेन जर्नी शुरू होती. कहाँ से? मनाली से. दिल्ली से मनाली वो 2 डेज़ में पहुँच गए. वहाँ पे बिल्कुल क्लीन एयर, हाई माउंटेन्स थे और बहुत सारे डिफ़िकल्ट रोड थे यहाँ से लद्दाख जाने के लिए. सो उनकी जर्नी यहाँ पे स्टार्ट हुई. अब क्योंकि वो he left her house and start sleeping or resting on the tent. So tent is a type of a new home for Gaurav Jani. Loner and I were covering long distance each day. All I needed was food and a tent to protect myself from the cold night air. My nylon tent was so small that I could just about to fit. Loner stood guard outside the tent. The breeze and the sound of bird woke me up to see the sunrise. This is the tent of Gaurav Jani nylon tent, which is made by a synthetic fiber and it is very durable and also it's prevent or protect from cold. सो वो टेंट बहुत स्मॉल था जिसमें सिर्फ गौरव जानी ही फिट हो पा रहे थे. दैट्स वाई लोनर आर गार्डिंग आउटसाइड ऑफ द टेंट. अब सुबह की जो हवा थी इतनी अच्छी थी कि जो सनराइज हुआ उसी से वो उड़ गए थे. नाउ ही क्रॉसिंग अ कोल्ड डेजर्ट बिकॉज ही इज़ इन द मनाली एंड देयर वॉज अ वेरी स्नोई डेजर्ट. So desert is also cold in Manali. Okay. At last, Loner and I reached Leh. From the first time I saw an area high, dry and flat called a cold desert. Ladakh gets very little rainfall. Here there are high snow-capped mountains and a cold flat ground. In Ladakh, I found myself in a quiet street with beautiful white houses. As I rode slowly, I found that I was being followed by a group of children. They called out, "Jile Jile," meaning welcome, welcome. They were all crazy to see my loner. Everyone wanted to me come to their home. अब वो वहाँ से निकले तो वो लेह पहुँचे. उन्होंने पहली बार गौरव जानी ने एक बड़ा फ्लैट ड्राई एरिया देखा था जिसे कोल्ड डेजर्ट कहते हैं. लद्दाख में बहुत कम ही बारिश होती है. सो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े स्नो से ढके हुए माउंटेन और फ्लैट ग्राउंड ही होते हैं. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज़ द माउंटेन एरिया एंड इट इज़ अ वेरी फ्लैट area which is known as the cold desert. ओके. सो लद्दाख में उन्होंने पाया एक वेरी ब्यूटीफुल स्ट्रीट पूरा जो कि वाइट हाउसेस से था. सो वो थोड़ा स्लोली चला रहे थे. फिर उन्होंने देखा कि देयर आर मैनी चिल्ड्रंस आर फॉलोड हिज बाइक एंड हिज हिमसेल्फ एंड शी started call out Jule Jule in the Ladakh language is a different from us and Jule meaning of the Jule is welcome.
सो आपके लैंग्वेज में वेलकम को क्या कहते हैं? जब आपके घर कोई आता है तो आप उसका स्वागत क्या कहकर करते हैं? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. इन देयर आर डिफरेंट स्टेट्स, दे आर यूजिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस, एंड इन योर लैंग्वेज व्हाट इट इज़ द मीनिंग ऑफ वेलकम. सो वो उसे वेलकम कह रहे थे और सब कोई लोनर को देखकर बहुत खुश हो गए थे क्योंकि वो बहुत डिफरेंट थी. उस टाइप की बाइक्स वहाँ नहीं होती थी. सो हर कोई गौरव जानी को अपने घर में इनवाइट करना चाहता था. अ होम विथ ताशी, जो बच्चों का एक चिल्ड्रंस का जो ग्रुप था उसमें एक बच्ची थी जिनका नाम था ताशी. सो ताशी ड्रैग मी टू हिज हाउस. इट वॉज अ बिल्डिंग विथ 2 floors. The house was made of stones which were kept one over the other. The walls were coated with a thick layer of mud and lime. The houses looked like shed from inside with a lot of hay. So वो ताशी ने ड्रैग्ड मतलब उनको खींच के अपने घर ले गई और वो 2 floors का था जो उनका घर था. वो स्टोन से बना हुआ था, जो स्टोन एक के ऊपर एक रखे गए थे, वन ओवर द अनदर. वॉल जो थी वो एक थिक लेयर मड और लाइम की बनी हुई थी और उनका जो शेड था वो इनसाइड से बहुत बड़ा था और अंदर पे हे रखा गया था. हे मीन्स जो गाय का चारा होता है या गॉट और शिप्स के जो चारे होते हैं जो उनको खिलाते हैं उनको हे कहते हैं. सो दैट इज स्टोर देयर. We took the wooden step and reached the first floor. This is where we stay, explained Tashi. The ground floor is for animals and for storing necessary things. Sometimes when it gets too cold, we also move downstairs. I noticed that the ground floor had no window. Thick tree trunks were used to make the roof strong. अब जो ताशी अपना घर उनको दिखा रही थी, सो वो वुडन स्टेप से फर्स्ट फ्लोर पहुँचे और ताशी ने कहा कि यहाँ हम रहते हैं. ग्राउंड फ्लोर एनिमल्स के लिए रहता है और कुछ ऐसी नेसेसरी थिंग्स जो हमें नीड होती है वो हाँ वो स्टोर करके रखते हैं. और जब बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है तो ताशी ने बताया कि हम कभी कभी डाउनस्टेयर के जो स्टोर रूम है, जो रूम है जहाँ पे एनिमल्स रहते हैं, वहाँ पे भी हम रहते हैं. सो गौरव जानी ने नोटिस किया कि वहाँ कोई भी विंडो नहीं था. पेड़ के बड़े बड़े ट्रंक से वहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग रूफ बनाई गई थी जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी. ताशी देन टुक मी द रूफ ऑफ हिज हाउस. What a view! I could see the same flat roof all around. On some, red chili were laid out to dry. On some, there were orange pumpkins and golden yellow corn. Some had a stack of paddy and some cow dung cake were laid out to dry. अब ताशी ने क्योंकि ग्राउंड फ्लोर ने दिखा दिया था, फर्स्ट फ्लोर दिखा दिया था, सो अब उसको सीधा वो घर के रूफ पर लेकर गई. वहाँ से बहुत ब्यूटीफुल व्यू था. जितने भी सारे घर थे वो सेम थे एज लाइक अ ताशी हाउसेस. और उनके रूफ पे हर किसी के छत पर डिफरेंट थिंग्स सूखने के लिए, ड्राई होने के लिए रखी गई थी. जैसे किसी के यहाँ रेड चिलीज़, किसी के यहाँ ये ऑरेंज पम्पकिन, तो किसी के में गोल्डन येलो कॉर्न. कुछ के यहाँ पैडी के स्टैक्स भी रखे गए थे और कईयों के यहाँ काउ डंक भी रखा गया था, काउ डंक केक. What is the meaning of cow dung cake? I told you in the online classes, so you have to give the answer in the comment section that what is the meaning of cow dung cake. Now continue. This is the most important part of our house, said Tashi. During summer season, we dry many fruits and vegetables. We store them for winter when we do not get fresh fruit and vegetables. ताशी ने बताया ये घर का उनका बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है. समर में वो डिफरेंट टाइप्स के वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को सुखाकर रख लेते हैं विंटर के लिए, क्योंकि विंटर में ये चीज़ें नहीं मिलती. सो फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल उनको अवेलेबल नहीं होते. दैट्स वाई दे हैव टू ड्राई अप दिस थिंग्स, दिस vegetables in the summer time at their roof for winter. Now as I stood there where Tashi
there with Tashi, I could see how every part of houses were built especially to suit the need of his people. I could understand how the thick wall, a wooden floor and a wooden ceiling protect them from the cold. वहाँ पे वो खड़ी होके आई तो उन्होंने देखा घर का हर पार्ट, इवन हर घर का हर पार्ट वहाँ रहने वाले लोगों की नीड के अकॉर्डिंग बनाया गया है, चाहे वो थिक वॉल्स बनाना हो, चाहे वुडन की फ्लोर हो, वुडन की सीलिंग हो, बिकॉज ऑल दिस थिंग प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द कोल्ड. सो पहले जैसे वो घर पे पहुँचे थे तो वो थोड़े से कंफ्यूजिंग थे कि ये सारी चीज़ें क्यों हैं, स्टोन के वॉल्स क्यों हैं, इतने थिक क्यों हैं, मर्डन लाइम से कवर्ड क्यों हैं, वाई दे यूजिंग द ट्री ट्रंक फॉर द रूफ एंड वुडन फ्लोरिंग. सो नाउ he could understand why they do that, because all the things are protect from the cold. People living on top of world. Now was the time to climb higher. Loner had a tough time zigzagging around narrow rocky mountain roads. At many places there were no road at all. अब और ऊपर जाने का टाइम आ गया था. माउंटेन, जैसे आपने इंडिया का मैप देखा है ना, तो हम अगर मुंबई पे रहते हैं तो हमें और जम्मू कश्मीर, लद्दाख ये सब जाने के लिए थोड़ा मैप के ऊपर जाना पड़ेगा. सो अब टाइम हो गया था और ऊपर क्लाइंब करने के लिए. अब लोनर के लिए भी बहुत टफ टाइम था क्योंकि बहुत सारी जगहों पर सड़कें नहीं थी, स्टोन और रॉकी पैथ्स थे और स्ट्रेट रोड ना हो के वो जिगजैगिंग थी. जिगजैगिंग मीन्स लाइक दिस, कुछ इस तरह की सड़कें थी. सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू लोनर. नाउ आई वॉज मूविंग टूवर्ड्स द रॉकी पैथ फॉर चैंगथंग. This place at a highest of almost 5,000 meters. It is so high that it is difficult to breathe normally. I had a headache and felt weak. Then I slowly got used to breathing in such air. For many days we keep wandering in this area with not a single human being in sight. No petrol pumps, no mechanics, only clear blue sky and many blue lakes around. अब वो धीरे धीरे रॉकी पैथ से होते हुए चैंगथैंग पहुँचे जो ऑलमोस्ट 5,000 मीटर्स था. वहाँ से वहाँ पे ब्रीथ करना बहुत मुश्किल हो रहा था, बिकॉज जैसे जैसे हम हायर प्लेस पे जाते हैं ऑक्सीजन की जो लिमिटेशन होती है, ऑक्सीजन जहाँ पे रहता है हायर प्लेस पे उतना नहीं होता, बिकॉज द गैसेस आर लाइटली एज कंपेरिजन टू ऑक्सीजन. सो ऊपर माउंटेन पे जाएंगे तो ऑक्सीजन की सप्लाई या ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वो प्रेजेंट कम होता है. सो धीरे धीरे शुरुआत में तो उसे डिफ़िकल्टी हुई ब्रीदिंग करने में, देन इट इज़ यूज टू. और पहले तो उनको हेडेक होता था, थोड़ा सा वीक फील करते थे, बट धीरे धीरे वो सीख गए उस एयर में ब्रीथ करना. सो बहुत दिन वो वहाँ पे थे तो उन्होंने ये नोटिस किया कि वहाँ पे कोई भी नहीं था, नॉट अ सिंगल ह्यूमन बीइंग, इवन नॉट एन एनिमल्स, नो पेट्रोल पम्प, नो मैकेनिक्स, सिर्फ क्लियर ब्लू स्काई और ब्यूटीफुल लेक्स थे वहाँ पे. Many days and night passes, Loner and I keep moving ahead. Suddenly, one morning, I saw before me flat grassy land. Many sheep and goats were grazing there. Far in the distance, I saw some tents. I wondered who lived there and what they were doing in this far place. बहुत सारे दिन गुजर गए, रातें निकली तो लोनर और गौरव जानी आगे बढ़ते जा रहे थे. लेकिन एक दिन सडनली मॉर्निंग में उन्होंने देखा एक ग्रासी लैंड, मतलब घास वाले एरिया पे बहुत सारे शिप्स और गॉट आए थे जो ग्रेजिंग कर रहे थे वहाँ. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्रेजिंग? इफ़ आई सेड दैट sheep and goats were grazing the grassy land, so what is the meaning of grazing? You have to tell in the comment section that grazing की मीनिंग क्या होती है, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. सो वो जो शिप और गॉड थे वो गौरव जानी के टेंट के थोड़े दूर पे ही थे, और गौरव जानी बहुत आश्चर्य हुआ था उसको, वो वंडर फील कर रहा था कि
इतनी दूर पर जहाँ पे कोई भी एक सिंगल ह्यूमन उन्होंने बहुत दिन से नहीं देखा था, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। सो ये थोड़ा सा गौरव जानी उनको थोड़ा सा एबनॉर्मल लगा था कि इतने हाईएस्ट प्लेस पर लोग क्या कर रहे हैं। द चैंगपा, देयर आई मीट नामग्याल and come to know about the Changpa, a tribe which is living on the mountain. The Changpa tribe has only about 5,000 people. The Changpa are always on the move with their gods and ships. चैंगपा एक ट्राइब होती है, एक प्रजाति होती है जो सिर्फ माउंटेन्स पे ही रहती है, और चैंगपा के ट्राइब में सिर्फ 5,000 लोग ही थे, और ये हमेशा माउंटेन्स पे ही रहते हैं विद देयर शिप्स एंड गॉड्स. It is from this that they get all that they need: milk, meat, skin for tents, and wool for coats and sweaters. Their gods are their only treasure. If a family has more animals, it is considered more rich and important. From these special gods, they get wool for making the world famous Pashmina wool. The Changpa graze their god at higher and colder place so that the god have more and softer hair, which is also known as the fur. They stay high up on this mountain in very difficult conditions because that is where their god can live. This is their life and their livelihood. वो सिर्फ शिप और गॉड को ही पालते थे, और उन्हें वो सारी चीज़ें मिल जाती थी जो उनकी ज़रूरी होती थी, जैसे कि मिल्क, मीट, टेंट के लिए स्किन, उनके स्वेटर और कोट के लिए वूल्स मिल जाते थे. सो उनके जो गॉड्स थे वही उनका एक बहुत बड़ा ख़जाना थे. ट्रेजर्स मीन्स खजाना. और जैसे हमारे यहाँ होता है, किसी का घर बड़ा है, कार है, उनके पास बहुत सारे पैसे हैं, so we are known that they are rich. But in Changpa tribe they are rich by their gods, by their animals. जिस फैमिली में जितने ज़्यादा एनिमल्स होंगे वो फैमिली उतनी ज़्यादा रिच होगी और उतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी. सो फ्रॉम द स्पेशल गॉड्स, वहाँ पे एक स्पेशल गॉड्स होती हैं जो कि बहुत हायर प्लेस पे रहती हैं. दैट्स वाई उनके जो फर होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं. सो वहाँ पे वर्ल्ड फेमस पश्मीना शॉल बनती है. पश्मीना शॉल जो होती है वो बहुत ज़्यादा गर्म करती है. हमने क्लास 4 में पढ़ा था पश्मीना. डिड यू रिमाइंड इट इन द मधुबनी आर्ट चैप्टर्स? There are a pashmina shawl which is made by a Kashmiri god because his fur is so soft and it's keeping so warm to our body. And one pashmina shawl get warm to as like a 6 sweaters. हमारे जो 6 sweaters पहनेंगे उसके जितना वार्म देती है पश्मीना शॉल हमारी बॉडी को. सो चैंगपा अपने गॉड को इसीलिए और हायर प्लेस पे जाते हैं ताकि उनके जो गॉड्स हैं उनकी बॉडी कंफर्ट हो सके और उनके जो फर हैं वो और ज़्यादा सॉफ्ट हो सके. सो दे स्टे अप हाई अप इन ऑन माउंटेन इन वेरी डिफ़िकल्ट कंडीशन. और उनका जो लाइवलीहुड मतलब उनकी जो ज़िंदगी चलती है वो सिर्फ गॉड की वजह से ही चलती है. आई वॉज केयरिंग वेरी लिटिल ऑफ माई belongings on my motorcycle, but the Changpa carry everything that they own on their horses and yaks. It takes them 2.5 hours to pack everything and move ahead. With no time, they put up their tents and a chosen place. The luggage is unpacked and their home are ready. गौरव जानी ने बहुत कम ही चीज़ें पैक की थी अपनी मोटरसाइकिल में, बट चैंगपा जो थे वो उन्होंने सब कुछ जो उनको चाहिए था व्हाट दे नीड, तो उन्होंने सब पैक किया था अपने हॉर्स और याक में, और उनको सिर्फ हाफ एन आवर लगता था सब कुछ पैक करके उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाने के लिए. और वो वहाँ पे एक जगह प्लेस चूज़ करते थे, वहाँ पे टेंट लगाते थे, अपने लगेज अनपैक करते थे और वो अपना घर वहीं पे ही बना लेते थे, और फिर उसको समेट कर दूसरी जगह जाने में उनको सिर्फ हाफ एन आवर लगता था. You are most welcome into our house, said Namdyal as he led me to the big cone-shaped tent.
They call their tent rebo. Yak hair is woven to make strips which are stitched together. These are strong and yarn and protect them by the icy strong winds. I saw the strips were tightly tied with the 9 sticks. The ground is dug about 2 feet deep. The tent is then put up around this in the higher part of the ground. नामग्याल जो उन्होंने जो ऊपर गए थे तो वो उनसे मिले थे, वहाँ पे उन्होंने उनका वेलकम किया अपने टेंट पे जो एक कोन शेप की तरह थी, और उस टेंट को वो रेबो कहते थे, जो कि याक के हेयर से स्ट्रिप टाइप वुवन मतलब बुना गया था और वो वहाँ से बनी हुई थी. These are strong and warm to protect them from the icy strong winds. उन्होंने देखा कि बहुत सारे स्ट्रिप्स टाइटली बांधी गई थी वहाँ के 9 स्टिक से टेंट बनाने के लिए, और ज़मीन को 2 फीट नीचे गड्ढा खोद कर बनाया गया था, और वहाँ पे ही उन्होंने टेंट अपना लगा लिया और अपना घर बना लिया इतने हायर पार्ट पे. So here student, half of the part is chapter I explained in this video. Then in the next video I completed this chapter. I'll ask many questions in this chapter, so you have to answer it in the comment section with your name, and like my video and subscribe my channel for new videos. Thanks for watching. Have a great day.